Good evening, all. Hello and welcome to my session General Care, Common Respiratory Problems, Their Prevention and Cure. This is Dr. Rupinder from BGJI Punjab University. First of all, I congratulate all of you on Labor Day. So please accept my congratulations on that. Secondly, I'd like to congratulate as well as thank you all for helping me to complete 40 days of lockdown. By now, all of us have read a lot about the coronavirus, so I'll not go into the details of the coronavirus. In the coming times, as we are living with numerous other viruses, we'll start living with the coronavirus. But for this, we need certain changes, and those changes in our lives will like to incorporate. I'll stress upon a few of them. Now, why this lockdown was done, and what was the benefit of this lockdown? This I'll address pertaining to the health benefit point of view, and this lockdown helped us to decrease the burden of the disease. What we understand by the term burden of the disease is the number of casualties, number of deaths, as well as the number of cases of corona, they decreased due to the timely lockdown. In few countries, we have seen what a havoc this corona has led to. So in our country, the timely lockout done helped us a lot to devise policies and to improve the infrastructure, as well as to designate the hospitals, assign hospital beds, equipments, medicines, diagnostic kits, and to train and assign the human resources to manage this crisis. Apart from this, we could also understand the early warning signs, the public information, education and prophylactic measures could be devised, and they further timely interventions and improvements in them could be also done very easily. Now we come to our first topic, that is general care or prevention. So what all factors play an important role in prevention of COVID in general? We'll stress on basic three factors which are important, and among them are the behavioral, nutritional and the social. So now one by one we'll take up all these three factors. The first one is the behavioral factor. What do we understand by the behavioral factor? It means behavioral factor मतलब कि हम एज ए इंडिविजुअल क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इन्फेक्शन को कम करने के लिए, तो वो उसके ऊपर हम अब चर्चा करेंगे. तो सबसे पहले तो हम अपना हाइजीन मेंटेन करके रखें, मतलब सही समय पे हम नहाएं, हाथ समय पे धोएं, और किस तरीके से हाथ धोना है, क्या क्या चीज़ें हाथ धोने के लिए इम्पोर्टेंट हैं, उस पे भी हम आगे चर्चा करेंगे. इसके अलावा हमें शूज़ घर से बाहर उतार के रखने चाहिए. अगर हम बाहर से आए हैं
और तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि घर के एंट्रेंस डोर के बाहर हम एक क्लोज्ड शू रैक रखें, जिसमें कि हम बाहर के शूज़ डालें और अंदर घर के हम वो शूज़ ना लाएं। ये चीज़ तकरीबन सारी सेंट्रल इंडिया एंड सदर्न इंडिया में की जाती है। वहाँ पे लोग बाहर के जूते घर के अंदर नहीं यूज़ करते हैं। सो इन रेस्ट ऑफ द इंडिया ऑल्सो विल हैव टू मेंटेन दिस। तो हमें क्या करना है कि अगर आपके पास जगह नहीं है घर के बाहर जहाँ पे आप जूते का बंद रैक रख सकें, तो आप एक शू बॉक्स ले लें या एक ट्रे ले लें, जिसमें कि जब आप बाहर से आएँ तो अपने जूते डालें और उसको उसके बाद उसके ऊपर आप स्पिरिट या सैनिटाइज़र स्प्रे करके उसे रखें और उस जूते को अंदर घर पे ना यूज़ करें। घर के लिए आप डिफरेंट शू यूज़ करें। इसके अलावा जो बाहर आपने कपड़े डाले हैं उनको घर आते सार ही चेंज करें और हॉट वाटर एंड सोप सॉल्यूशन में डालें। तकरीबन मिनट से 1 घंटे तक उसे उसमें डाल के रखें सॉल्यूशन में और फिर उसको वॉश कर दें। इसके अलावा कुछ और चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, जैसे कुछ पर्सनल आइटम्स जो हम डेली यूज़ करते हैं, जैसे हमारे टॉवल्स हो गए, हेयर ब्रशेस हो गए, टूथ ब्रशेस हैं, हैट्स, स्कार्फ्स, कप्स, ग्लासेस, बॉटल्स, ये हमें शेयर नहीं करनी चाहिए क्योंकि दे बिकम अ सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। सो ट्राई करें कि उसकी यूजेज अपने तक ही सीमित रखें। इन केस कहीं अगर कोई भी आपकी जगह इन्फेक्ट हो जाती है तो वहाँ पे आप डिसइंफेक्टेंट यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि 1:100 ब्लीच सोल्यूशन। तो ये जो ब्लीच सोल्यूशन है 1:100 का बना के इसे यूज़ करना होता है, जिसमें कि 1 पार्ट ब्लीच का होगा और 99 पार्ट्स वाटर के होंगे। और इस सोल्यूशन को आप यूज़ कर सकते हैं जिनके घर में अगर कोई नोवल कोरोना का पेशेंट है या आप अटेंडेंट हैं उस पेशेंट के, तो आपको यूज़ करने की ज़रूरत होगी। आप उस कमरे में जिस कमरे में उनको रखा गया है आइसोलेशन में, उसमें दिन में 2 बार इस सोल्यूशन से उनके फ्लोर्स मॉप कीजिए। उनके डोर हैंडल्स एंड अदर फिक्सचर्स जैसे लाइट की स्विचेस हैं और भी कुछ चीज़ें जो हैंडल करने की जो कबर्ड्स के हैंडल्स हैं, उनको हम इस सोल्यूशन से अच्छे से क्लीन कर सकते हैं ताकि इन्फेक्शन बाकियों में ना हो, लीस्ट इन्फेक्शन हो। नाउ वी कम टू हैंड वॉशिंग। अब हैंड वॉशिंग जो है वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है और अगर हमने सही तरीके से हाथ धोए हैं और उसके सारे स्टेप्स हैंड वॉशिंग के हमने फॉलो किए हैं, तो हम तकरीबन 80% तक 80% तक हम इन्फेक्शन को रिड्यूस कर लेते हैं। सो नाउ फर्स्ट आई विल टेल यू द पॉइंट्स जहाँ पे तकरीबन हमें सबको पता है कि कब हमें हाथ धोने चाहिए, बट फिर भी कई बार हमसे गलती हो जाती है। तो आई विल जस्ट जॉट डाउन दोज पॉइंट्स कि एक तो खाना बनाने और खाने दोनों से पहले हाथ धोने और खाना बनाने और खाने के बाद। सो प्रिपरेशन ऑफ फूड से पहले, प्रिपरेशन ऑफ फूड के बाद, खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद, ये हाथ धोने मैंडेटरी हैं। वॉशरूम यूज़ करने के बाद हाथ धोना ज़रूर चाहिए। अगर आपको खांसी है, ज़ुकाम है, तो भले आपने खांसी ज़ुकाम के लिए टिश्यू यूज़ किया है या आप हैंकी भी यूज़ कर रहे हैं, उसके बावजूद भी आपको हैंड वॉश करने चाहिए खांसी ज़ुकाम की अगर आपको तकलीफ़ है तो। इसके अलावा जो छोटे बच्चे होते हैं वो उनके टॉयज़ आर ए सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। तो जो भी टॉयज़ हैं उनको ट्राई करिए कि आप टॉयज़ जो धुल सकते हैं उनको फ्रीक्वेंटली धो सकें, पोंछ सकें।
लेकिन इसके अलावा बहुत ज़रूरी जो चीज़ है वो ये है कि जब बच्चा खेल के हटता है तो वो अपने हाथ ज़रूर धोए। उससे बच्चे को जो होने वाली इन्फेक्शन के चांसेस हैं वो कम हो जाएंगे, बच्चे में गुड हैबिट डेवलप होगी। सो दिस इज़ गुड फॉर हिम। इसके अलावा अगर आपके घर में पेट्स हैं और उनके वेस्ट आप हैंडल कर रहे हैं तो उसके हैंडलिंग के बाद हाथ धोने बहुत ज़रूरी हैं। बाहर से घर से अगर आप आए हैं तो आपको हाथ धोने बहुत ज़रूरी है। घर घुसते सार ही सबसे पहले आप हाथ धोइए, तब कोई और काम कीजिए। हाथ धोना, कपड़े बदलने, और अगर हो सके तो बाथ लीजिए। देन यू कैन इंटरेक्ट विद रेस्ट ऑफ द फैमिली एंड डू द रेस्ट ऑफ द कोर्स। तो ये अगर हम रूटीन अपना बना लें तो इट विल हेल्प अस इन अ लॉन्ग वे। नाउ हाउ टू वॉश आवर हैंड्स, एंड एक्चुअली हैंड वॉशिंग के 7 इम्पॉर्टेंट स्टेप्स हैं, एंड अगर हम वो 7 स्टेप्स फॉलो करें तो हाथ अच्छे से हमारे वॉश होंगे और 80% तक हम इन्फेक्शन को अवॉइड कर सकेंगे। वेदर इट इज़ बैक्टीरियल, वायरल, पैरासिटिक, किसी भी तरह की इन्फेक्शन है, हाँ, उससे हम बच सकते हैं। And I'll suggest all of you, I'll demonstrate hand washing techniques, and I request all of you कि आप सब मेरे साथ वो 7 steps फॉलो करें। और इसके अलावा आप अपने बच्चों को कोशिश करें कि वो आपके ये 7 स्टेप्स आपके साथ करें। अगर आप अपने बच्चों के लिए रोल मॉडल बनेंगे तो बच्चे उस चीज़ को सीखेंगे भी जल्दी, उसको एंजॉय भी करेंगे, और उनके लाइफ में आगे ये चीज़ें बहुत काम आएंगी। दे विल बी लेस प्रोन टू इन्फेक्शंस बिकॉज ये उनकी ज़िंदगी का एक डेली रूटीन बन जाएगा। तो हाथ धोने के लिए हमें मिनिमम 20 सेकेंड्स सोप हैंड्स पे रखने होते हैं। ये ज़रूरी होता है। कॉन्टैक्ट ऑफ द सोप विद आवर स्किन शुड बी मिनिमम ऑफ 20 सेकेंड्स, जितनी देर में कि जो कीटाणु हैं वो सारे सही तरीके से मर जाएं, वो उनकी जो इफ़ेक्टिविटी है वो ख़त्म हो जाए, और उसके बाद ही हमें हाथ रिंस करने चाहिए। तो ये जो हमने हाथ धोने हैं तो ये कैसे हमने शुरू करना है ये मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करूँगी अब। तो सबसे पहले तो हमने हाथ अपने पानी से गीले कर लेने हैं, उसके बाद हाथ पे थोड़ा सा साबुन डाल लेना है। देन द फर्स्ट स्टेप इज़ ये दोनों जो पाम्स हैं ये आपस में हमने रब करने शुरू करने हैं। वंस ये हम रब करने शुरू करते हैं तो क्या होता है कि फोम जनरेट होनी शुरू हो जाती है सोप की, और इसे हमने ऐसे रब करना है। छोटे बच्चों को आप राइम्स बोल सकते हैं कि वो इसके साथ साथ राइम्स अपनी शुरू कर लें, जैसे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, है ना। तो बच्चे अगर इसके साथ साथ राइम्स बोलते जाएंगे तो इट विल बी फन टाइम फॉर देम, दे विल स्टार्ट एंजॉइंग इट एज वेल। तो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप, हाथ इस तरीके से रब करना है। सेकेंड स्टेप इज़ ये एक हाथ दूसरे हाथ की फिंगर्स इस तरीके से आपने खोलनी है और इसके बीच में से ये पाम ऑफ द हैंड एट द बैक साइड ऑफ द अदर हैंड, दिस शुड रब, और इससे आगे पीछे करके इस तरीके से आपने रब करते हुए इसे धोना है। देन द अदर वे साइड ऑल्सो इसको अच्छे से रब करना है। फोम पूरे हाथ पे आ जाती है जब आप ऐसे करते हैं। देन थर्ड स्टेप इज़ ये फिंगर्स दूसरे हाथ की फिंगर्स के बीच में एंटेंगल करके पहले एक हाथ के अंदर की सारी गंदगी हमने साफ करने की कोशिश करनी है, फिर ऐसे ही दूसरे हाथ की करनी है। देन दिस हाथ इस तरीके से रखने हैं, अंगूठे से ये नक्कल्स जो हैं हमारी, ये जो हड्डियां होती हैं, इसको रोटेटरी मूवमेंट से यहाँ पे अच्छे से साफ करना है। ये पूरा आपका साफ हो जाना चाहिए। सिमिलरली फॉर द अदर हैंड, ये भी हमने इसी तरीके से ऐसे करना है। तो
इससे हमारे हाथ के जो यहाँ पर भी गंदगी होगी वो सारी साफ हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप इज ये हाथ ऐसे स्लाइड करना है और फिर अंगूठे को रगड़ के हमने इस तरीके से रगड़ना है। सेम इज टू बी फॉलोड फॉर द अदर हैंड। इसे भी ऐसे करके और फिर इसे करना है। देन हमने नेक्स्ट स्टेप इज कि इस तरीके से हाथ को आपने इकट्ठा कर लेना है। देन इसको क्लॉक एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रब करते हुए इसे हमने इस तरीके से रब करना है फॉर बोथ दी हैंड्स। इससे क्या होता है, जो नेल्स के यहाँ मिट्टी फंसी होती है वो सारी क्लीन हो जाती है। एंड देन द सोप इज टू बी रब्ड दिस वे टिल हाफ ऑफ योर फोर आर्म। और जब यहाँ तक ये लास्ट स्टेप है, इसके बाद आप पानी के नीचे, टैप के नीचे हाथ रख के अच्छे से हाथ को रिंस कर लीजिए। और वंस ये सारा हाथ रिंस हो गया आपका, तो आपका हैंड अब प्रॉपरली क्लीन है। यू हैव ऑलरेडी फॉलोड ऑल दी 7 steps, and once these steps become a part of your life, you'll start enjoying it. Your children and you will be safe, and you will have less of your problems. Now we'll discuss a bit about the kind of soaps we should use. See, पीछे इतना हल्ला हो गया था कि जी हैंड सैनिटाइजर्स से ही हाथ धोने हैं, मेडिकेटेड सोप से ही हाथ धोने हैं। जो लोग घर पे रह रहे हैं उन्हें घर पे जो हमारे पास साबुन हम रूटीन में यूज़ कर रहे थे वो सफिशिएंट है। हमें किसी मेडिकेटेड सोप की या सैनिटाइज़र की ज़रूरत नहीं है। जो लोग घर से बाहर जाते हैं उन्हें ज़रूरत है मेडिकेटेड सोप्स या हैंड सैनिटाइजर्स की। एंड डेफिनेटली इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द हेल्थ वर्कर्स, फॉर द पीपल हु आर ऑन द मूव, हु आर ऑन द इमरजेंसी ड्यूटीज़, जो पुलिस ऑफिशल्स हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, जो वॉलंटियर्स हैं, जो क्लीनर्स हैं, जो लोग केयर टेकर्स हैं for the COVID patients, or they are supplying food items for them, और जो लोग कॉलोनीज में जाके काम कर रहे हैं उन लोगों के लिए जब वो वहाँ जाते हैं तो उन्हें फ्रीक्वेंटली हैंड सैनिटाइज़र से हाथ धोने चाहिए। और जब वो घर आते हैं तो घर आने से पहले उन्हें अच्छे से मेडिकेटेड सोप से हैंड्स वॉश करने चाहिए, सैनिटाइजर्स लगाने चाहिए। फिर उसके बाद घर आके बाकी के जो प्रोसीजर्स हमने पहले बताए थे उन्हें फॉलो करना चाहिए। बट रूटीनली जो लोग घर पे रह रहे हैं उन्हें हैंड सैनिटाइजर्स की ज़रूरत नहीं है, उन्हें मेडिकेटेड सोप्स की ज़रूरत नहीं है। कुछ ड्रॉबैक्स सैनिटाइजर्स के आई लाइक टू पॉइंट आउट, जैसे कि जो बच्चे हैं, स्पेशली छोटे बच्चे जो फ्रीक्वेंटली हाथ मुंह में डालते हैं, उनके लिए ये अच्छी चीज़ नहीं है। बिकॉज आफ्टर ऑल इट इज़ केमिकल एंड बच्चों पे उसका नुकसान हो सकता है। जो लोग किचन में काम करते हैं, फायर के पास काम करते हैं, हैंड सैनिटाइज़र इज़ इन्फ्लेमेबल, उसमें आग पकड़ती है बहुत जल्दी, तो वो सही नहीं है। इसके अलावा जो थर्ड पॉइंट है विच इज़ अगेंस्ट हैंड सैनिटाइज़र, दैट इज़ कि जो धूल, मिट्टी, ग्रीस, कोई भी इस तरीके की चीज़ है उसे वो साफ़ नहीं करता है। आपको पहले सोप एंड वाटर से ही हाथ धोना पड़ेगा, और जब आपके हाथ साफ़ हो जाएं तब आप हैंड सैनिटाइज़र यूज़ कर सकते हो। बिकॉज हैंड सैनिटाइज़र सिर्फ जो एक्स्ट्रा माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया एंड वायरसेस हैं जो कि हमें दिखते नहीं हैं और हवा के कांटेक्ट से हमें हमारे हाथ पे आने का डर होता है,
या कहीं किसी कॉन्टैक्टेड सरफेस से हमारे को उनका एक्सपोजर हो सकता है, तो उसके लिए वो हेल्पफुल हैं. इट इज़ नॉट हेल्पफुल फॉर डस्ट, डर्ट, ग्रीस एंड द लाइक्स. Now, few points I like to stress upon. Once the lockdown is lifted, तो तकरीबन हम सब के सब घर से बाहर निकलेंगे, और अभी जितने लोग बाहर निकल रहे हैं उनकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाएगी. तो उस समय पे हमें क्या करना होगा, क्योंकि कोरोना तो गया नहीं है, नोवल कोरोना स्टिल एग्जिस्ट एंड इट विल एग्जिस्ट एंड विल हैव टू लिव विद इट. जैसे हम जुकाम, खांसी, स्वाइन फ्लू या H1N1, मीजल्स, चिकन पॉक्स इसके साथ रह रहे हैं, वैसे ही हमें इसके साथ भी रहना पड़ेगा. तो हमें क्या करना है, एक तो जो कपड़े हम डालें जब हम बाहर जा रहे हैं तो कोशिश करें कि वो आपकी मैक्सिमम स्किन को कवर करें, सो दैट आप लीस्ट एक्सपोजर पे रहें. सेकेंड इज़ कि वो जो कपड़े हों वो लूज एंड फ्लोइंग कपड़े ना हो, ढीले कपड़े ना हो, लटकते हुए ना हो, ताकि अननोइंगली आप कोई और डस्ट या कुछ और गैदर ना करें इन्फेक्शन, और फर्दर आप अननोइंगली अपने आप को और अपनी फैमिली को एक्सपोज ना करें. इस चीज़ का आप ख्याल रखें. सेकेंड इज़ कोशिश करें कि अपना सिर और कान ढक के रखें जब आप बाहर जाएं. तो वो आप चाहे कैप्स, हैट्स, दुपट्टा, टर्बन कुछ भी यूज़ करें, बट ट्राई टू कवर दैट. Then eyes can be protected with spectacles or goggles. Any eyewear you can use to protect your eyes. इसके बाद जो आता है मास्क, तो नोज एंड माउथ, इसको हमने प्रोटेक्ट करने के लिए मास्क यूज करना है. आई विल रिकमेंड ऑल ऑफ यू टू यूज होममेड क्लॉथ मास्क. इस तरीके का जो क्लॉथ मास्क है ये हम बहुत इजीली मार्केट में भी मिल जाता है हमें, और घर पे भी हम इसे बना सकते हैं. ये मास्क बहुत इजीली मैनेजेबल है. इसे हम घर पे धो सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं. इससे हमें नॉर्मल में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है. सो जनरल पब्लिक के लिए दिस मास्क इज़ रिकमेंडेड. नाउ हाउ इट इज़ टू बी वोन, इस चीज़ का ख्याल रखना ज़रूरी है. सिर्फ मास्क डाल लेना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. इसको कैसे डालना है, उसमें हमें क्या क्या प्रिकॉशंस रखनी है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. आई विल टेल यू अ फ्यू ऑफ देम. तो सबसे पहले जब आप ये मास्क डालो तो इसको आपने नाक के ऊपर यहाँ रखना है. इसे इस तरीके से डालना है. टाई इट ओवर योर हेड. दिस शुड बी सिक्योर इन सच अ वे कि आपको इसे दोबारे से हाथ लगाने की ज़रूरत ना पड़े. ये आपको नाक पे सही से आ जाए, यहाँ आपके बिल्कुल सही आ जाए, आपको इसमें कोई तकलीफ़ ना हो. वंस यू हैव टाइड इट, द अदर एंड आपने यहाँ अच्छे से सिक्योर करना है. ये पूरा सही होना चाहिए, कहीं से ढीला ना हो. और इसे गर्दन के पीछे इस तरीके से आपने, एक आपके सिर के ऊपर जा रहा है और दूसरा आपके गर्दन के पीछे आपने इसको टाई कर लेना है. वंस दिस इज टाइड, नाउ दिस इज अ क्लीन मास्क जो आपने अच्छे से धो के आयरन करके और फिर ये बांधा है. सो ये बिल्कुल सैनिटाइज्ड है, इसमें कोई इन्फेक्शन नहीं है. लेकिन जब आपने ये बांध लिया और आप बाहर चले गए हो, या आपने कोई पेशेंट केयर की है या कुछ कोई भी काम किया है, उसके बाद जब आप आ रहे हो तो ये जितना आउटर सरफेस है वो सब इन्फेक्टेड है. जितनी देर आपने इसे बांध के रखना है,
आपने इसके आउटर सरफेस को टच नहीं करना है, यहाँ पे कहीं पे इधर से अंदर उंगली डाल के कुछ नहीं करना है, बिल्कुल नो टच टेक्निक यूज़ करनी है आपने। इसके अलावा आपने जब ये घर आ रहे हो आप, तो आपने आके सबसे पहले ये नीचे वाली नॉट खोलनी है इसको उतारने के लिए। ये नॉट सबसे पहले खोलनी है। उसके बाद आपने ये ऊपर वाली नॉट खोलनी है। यहाँ का सरफेस आपने तब भी नहीं टच करना है क्योंकि ये इन्फेक्टेड सरफेस है। वी वॉन्ट लीस्ट ऑफ द इन्फेक्शन टू बी कैरिड ऑन टू यू एज वेल एज योर फैमिली। तो ये हमने जब ये उतार लिया तो ये स्ट्रिंग्स से ही पकड़ के हमने हॉट वाटर एंड सोप के सॉल्यूशन में इसे डाल देना है। हमने इसे इसके जो इन्फेक्टेड सरफेस है उस पर बिल्कुल टच नहीं करना है। इस तरीके से हमने उसको डाल देना है और इसे कम से कम 40 मिनट से 1 घंटे तक गर्म पानी और साबुन के सॉल्यूशन में डाल के रखना है। फिर इसे धो के और धूप में सुखा लेना है। देन इसको आयरन करके हम रीयूज़ कर सकते हैं। आप घर पे 2-3 अगर ऐसे बना के रख लेते हैं या लेके रख लेते हैं तो इट इज़ गुड इनफ फॉर यू। यू कैन कीप ऑन यूजिंग देम एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। Any member of your family can use it. Why I am stressing on the cloth mask is कि एक तो इसमें जो hazard to the environment less है। Secondly जो N95 मास्क हैं वो बहुत कम हैं और वो कोरोना पेशेंट्स, उनके केयर गिवर्स, हॉस्पिटल स्टाफ उनके लिए मैंडेटरी हैं। प्लस उसकी जो डिस्पोजल है वो बायोमेडिकल वेस्ट बिन्स में करनी चाहिए क्योंकि वो बायोहैजर्डस हैं, वो इन्फेक्शियस हैं। अगर आप घर पे यूज़ करते हैं डिस्पोजेबल मास्क या N95 मास्क और आप उसको अपने घर के डस्टबिन में डिस्पोज ऑफ कर देते हैं तो व्हाट हैपन्स, इन्फेक्शन उस मास्क में है और आपकी जो सारी फैमिली है उसको वो इन्फेक्शन जा रही है बिकॉज दैट मास्क बिकम्स अ सोर्स ऑफ इन्फेक्शन फॉर ऑल ऑफ यू। आप लोग जितने घर पे रह रहे हो वो डस्टबिन के पास कभी ना कभी तो जाओगे ही और जितनी बार आप अगर इवन इफ उस पर लिड भी लगा हुआ है तो जब भी आप उसको खोलोगे तो वो इन्फेक्शन बाहर आएगी एंड यू आर प्रोन टू गेट दैट इन्फेक्शन। फर्दर जो आपके गार्बेज हैंडलर्स हैं और आगे उसके जो गार्बेज को कलेक्ट करके और उसको डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं उनको भी हम इन्फेक्शन दे रहे हैं। सो दिस शुड नॉट बी डन। इसका हमें ख्याल रखना चाहिए। जिन लोगों को यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है, इन केस यू हैव अ पर्सन इन योर फैमिली जो नोवल कोरोना पॉजिटिव है या आप उसकी केयर कर रहे हैं, आप केयर गिवर हैं या आप वॉलंटियर हैं और आपको यूज़ करना पड़ रहे हैं ऐसे मास्क, देन व्हाट टू डू। तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना है कि अगर तो आप वॉलंटियर्स हैं तो आप एक सारे इकट्ठे हो एक डस्टबिन ले सकते हैं जो कि कवर्ड डस्टबिन हो विद लिड वाली। उसे एक डस्टबिन बैग से लाइन कर लीजिए और जितने भी आपके वर्कर्स हैं वो जाने से पहले उस बैग में अपने ग्लव्स एंड मास्क डाल के जाएं और वो जो ग्लव्स एंड मास्क हैं वो आप इकट्ठे करके उसे आप, क्योंकि जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, जितने हेल्थ सेंटर्स हैं, डिस्पेंसरीज हैं, वहाँ से ये बायोमेडिकल वेस्ट कलेक्ट होता है। तो आप उनसे बात करके उनके पास ये डिपॉजिट कर सकते हैं या फिर जो बायोमेडिकल वेस्ट कलेक्टर है उससे बात करके और उसके पास ये डिस्पोज ऑफ आप कर सकते हैं। ये नॉर्मली डेली के डेली करने होते हैं तो उस चीज़ का ख्याल रखें ताकि हम एनवायरनमेंट को एंड बाकी की पॉपुलेशन को इस इन्फेक्शन से बचा सकें। देन अगर
आप के घर पे है और आपके पास नहीं है ऐसा कोई इंतज़ाम कि आप काफ़ी सारे लोग नहीं हैं, एक या दो ही हैं आपके पास जिनको आपको इस तरीके से मास्क और ग्लव्स यूज़ करने पड़ रहे हैं, लाइक N95 या डिस्पोजेबल ग्लव्स एंड डिस्पोजेबल मास्क। तो वो क्या करें, घर पे एक कवर्ड डस्टबिन इसी तरीके से सिर्फ इसी काम के लिए ईयरमार्क करके रखें और उसको बिन लाइनर से करके डस्टबिन बैग्स उसमें डाल के रखें और उस सिर्फ एक उसी डस्टबिन में वो वाले सारी चीज़ें डालें और उसे आप डिस्पोज ऑफ इसी तरीके से बायोमेडिकल वेस्ट बिन्स में करें, इधर उधर ना डालें। देन इज ग्लव्स जो लोग यूज़ कर रहे हैं, आई लाइक टू डेमोन्स्ट्रेट अ फ्यू थिंग्स ऑन ग्लव्स ऑल्सो। ये मेरे पास एग्जामिनेशन ग्लव्स हैं, ये इस तरीके के आप लोगों ने आजकल सब लोगों ने देखे होंगे। दीज आर नॉट द लेटेक्स वंस। लेटेक्स ग्लव्स सबके लिए नहीं रिक्वायर्ड हैं। लेटेक्स ग्लव्स सिर्फ कोविड पेशेंट्स या हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए रिक्वायर्ड हैं। बाकी लोग सब ये एग्जामिनेशन ग्लव्स को ही यूज़ कर सकते हैं। इससे ज़्यादा की नॉर्मली ज़रूरत नहीं होती है, बिकॉज ग्लव्स से हमें सिर्फ अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। इतना इसका यूजेज है। तो इसको डालना तो सारे हम डाल लेते हैं, लेकिन इसे निकालना कैसे है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वंस इट इज इन्फेक्टेड, देन हाउ टू रिमूव इट, विल स्ट्रेस ऑन दैट। नाउ ये जो डिस्पोजेबल दिस इज द एग्जामिनेशन ग्लव एंड इस टाइम पे ये फ्रेश है। तो फ्रेश है तो ये अंदर से भी और बाहर से भी दोनों तरफ से ये नॉन इन्फेक्टिव है। तो डालने के लिए तो हम इसे डाल सकते हैं कैसे भी, बट फिर भी डालते टाइम हम कोशिश करते हैं कि इसका जो इनर सरफेस है वो हम लीस्ट टच करें, सिर्फ हम आउटर सरफेस को टच करके हम ग्लव्स डालें। हमने इनर सरफेस इसका नहीं टच करना है। तो इस तरीके से हमने ये ग्लव्स डाल लिए। नाउ वंस दी ग्लव्स हैव बीन पुट, जो भी हमें इस ग्लव्स को डाल के काम करना होता है वो हम कर लें। एंड वंस वी हैव टेकन केयर ऑफ द पेशेंट और वट एवर वी हैड टू डू ड्यू टू विच हमें ये ग्लव्स डालने की ज़रूरत पड़ी, तो वो हमने कर लिया। जब हमने ये काम कर लिया तो अब हमारा ये ग्लव इन्फेक्टेड है। अब ये इन्फेक्शन ग्लव के किस पार्ट पे है ये हमें नहीं पता है, ठीक है। तो वी कंसीडर कि द होल ऑफ द ग्लव इज इन्फेक्टिव। अब इसको हमने उतारना कैसे है ताकि हमें भी इसकी इन्फेक्शन ना हो और दूसरों को भी इसकी इन्फेक्शन ना हो। तो उसके लिए हमें क्या करना है, ये जो हमारी रिस्ट और पाम के बीच की जो जगह है, ये वाला जो एरिया है, यहाँ पे हमने इसे पिंच करना है। ऐसे करके जब आपने पिंच किया, ये वाली जो उंगलियां हैं आपकी, इस तरीके से ये पिंच किया, ये जो आपकी तीनों उंगलियां हैं, ये दो उंगलियां आपने इसके बीच में ऐसे डाल लेनी है एंड वी रिमूव इट। जब हम इसको रिमूव करेंगे तो ये इनसाइड आउट हो जाएगा। ये जो हमारे हाथ के ऊपर था ग्लव का एरिया, वो अब बाहर की तरफ आ गया है। ये आप देख सकते हैं कि ये सारा वो बाहर आ गया है। और अब दूसरा जो ग्लव है वो कैसे उतारेंगे, अंगूठा अंदर की तरफ हमने डाला और इसे हमने बाहर खींचा। ये जो इन्फेक्टेड एरिया है वो अंदर रह गया और इसे हमने उतार लिया। इस तरीके से जब हम उतारते हैं तो ये ग्लव जो है वो नॉन इन्फेक्टिव एरिया, ये आ गया सारा नॉन इन्फेक्टिव एरिया, और ये इन्फेक्टिव एरिया जितना था वो सब अंदर चला गया और ये ग्लव एनक्लोज्ड ऐसे हो गया। और इसे अब हम जो हमने लाइंड डस्टबिन रखी थी जिसे हम बायोमेडिकल वेस्ट में डालेंगे, वो वाली में इसे डाल देंगे मास्क के साथ और इसे हम बायोमेडिकल वेस्ट
बिन्स में डिस्पोज ऑफ करेंगे. सो दिस इज़ हाउ द ग्लव्स शुड बी removed after usage. So now with this we finish off with the behavioral factors as an individual, where what all we can do, how we can help our society and ourselves apart from each other in decreasing the infection. Next is the factor is the nutritional factor. All of us know nutrition plays a very important role in our health. If we want to maintain our health, if we want to increase our immunity, तो हमें सही तरीके से खाना है, न्यूट्रिशियस खाना खाना है. तो ये जो खाना है, ये नॉर्मली हम क्या करते हैं कि जो हरी सब्जियां हैं, फल फ्रूट हैं, फ्रेश फल फ्रूट हैं, फाइबर्स हैं, सही तरीके के प्रोटीन्स हैं, सही अमाउंट में पानी है. हाइड्रेशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. अगर हमारे में पानी की कमी होगी तो भी वो हमारी सेहत के लिए सही नहीं है. उससे बहुत सारे हमारे सिस्टम अफेक्ट हो सकते हैं. तो उन चीज़ों का भी हमें ख्याल रखना है. इसके अलावा जो रूटीन में हमें कुछ चीज़ें कम खानी चाहिए जो कि ओवरऑल हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छी हैं, और अगर हमें कोई प्रॉब्लम है तो फिर तो वो हमारे लिए एड ऑन्स हैं. लाइक हमें मीठा कम खाना चाहिए, घी तेल वाली चीज़ें मॉडरेशन में यूज़ करनी चाहिए या कम खानी चाहिए, स्पाइसेस जो हैं वो कम खाने चाहिए. इसके अलावा हमें प्रिजर्वेटिव्स वाली चीज़ें, रिफाइंड पैक्ड फूड जो है वो नहीं यूज़ करना चाहिए. तो इन चीज़ों का हमें ख्याल रखना चाहिए खाने में. अगर आपको कोई भी बीमारी है तो इट इज़ ऑलवेज बेटर कि जो डाइट आपके डॉक्टर ने बताई हुई है और आपके डाइटिशियन ने आपको गाइड की हुई है, आप उनकी रिकमेंडेशंस को कंटिन्यू रखें, उसमें चेंजेस ना लाएं. इन केस यू नीड टू हैव चेंजेस, सो प्लीज़ कंसल्ट ईदर योर डॉक्टर और योर डाइटिशियन. अपने आप से उसमें चेंजेस करने की कोशिश ना करें. देन नंबर 3 इज़ द सोशल फैक्टर. अब सोशल फैक्टर जो है उसमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए हमें. हम बहुत दिनों से, पिछले तकरीबन 40 दिनों से हम मेंटेन कर रहे हैं सोशल डिस्टेंस, जो अब तक हम तकरीबन सारे सीख चुके कैसे करना है. सोशल डिस्टेंस मीन्स कि हमें 6 फुट की दूरी बना के रखनी है एक दूसरे के साथ. वो once the lockdown is over then also we'll have to keep on maintaining it. उसमें हम तब भी कमी नहीं कर सकते हैं. तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग इवन आफ्टर द लॉकडाउन इज ओवर. अपार्ट फ्रॉम दिस, the social distance is to be maintained at all the places. अगर आप सब्ज़ी खरीद रहे हैं, आपके घर के बाहर वेजिटेबल वेंडर आया है, फ्रूट वेंडर आया है, या आप ग्रोसरी शॉप पे जा रहे हैं, या आप बैंक जा रहे हैं, या हॉस्पिटल जा रहे हैं, वहाँ पर भी हमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखनी है. बी पेशेंट, ट्राई टू वेट फॉर योर टर्न, maintain the social distance, don't panic and don't create crowding. ये चीज़ें आगे हमें बहुत हेल्प करेंगी. इसके अलावा जो ऑफिसेज हैं, जहाँ पहले हम देख रहे थे कि ऑफिसेज में क्राउडिंग्स होती थी, कई ऑफिसेज में टेबल से टेबल जुड़े हुए रखे गए हैं, या एक ही टेबल पे 2 लोग बैठ के काम कर रहे हैं ड्यू टू वेरियस रीजंस. तो अब वो चीज़ें पॉसिबल नहीं हो सकेंगी. विल हैव टू चेंज दोज नॉर्म्स. और उसके लिए हमें कुछ चीज़ें, दी एडमिन विल बी बेटर पीपल टू
टेक डिसीजंस ऑन देम, बट आई विल रिकमेंड कि सोशल डिस्टेंसिंग वहाँ पर भी हमें मेंटेन करनी पड़ेगी. हमें अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द रूम एंट्री ऑफ द पर्सन्स रखने होंगे, ताकि वहाँ पर भी जितने लोग काम कर रहे हैं वो एक दूसरे के लिए हैजर्डस ना बने. और जिन जगह में हमें पब्लिक डीलिंग्स करनी है वहाँ पर भी हमें एंट्रीज रिस्ट्रिक्टेड रखनी पड़ेंगी, जैसे कि बैंक्स, हॉस्पिटल्स, पोस्ट ऑफिसेज, दी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज, स्टूडेंट सेक्शंस, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. तो वो सारी जगह पे भी हमें ये सारी चीज़ें रखनी पड़ेंगी. नाउ इफ़ यू हैव टू गो टू योर डॉक्टर, अगर आपने अपने डॉक्टर के पास जाना है, आपको कोई प्रॉब्लम है, तो आप क्या करें? तो आई विल रिकमेंड कि आप सबसे पहले तो अपने डॉक्टर को फ़ोन करके उनसे बात करें. अगर वो आपको फ़ोन पे आपकी प्रॉब्लम का हल कर सकें तो बहुत ही बेहतर है. इन केस आपकी प्रॉब्लम ऐसी है जिसका हल फ़ोन पे नहीं हो सकता है, देन ही विल गिव यू टाइम अकॉर्डिंग टू हिज रोस्टर, और उस रोस्टर में वो अपनी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखेंगे ताकि उनके पेशेंट्स में, उनके हॉस्पिटल में, उनकी क्लिनिक पे पेशेंट रश ना हो और एक दूसरे को हम इन्फेक्शन कम से कम दें. तो इसलिए इट इज़ ऑलवेज बेटर कि आप पहले अपॉइंटमेंट लेके उनसे और फिर उनके पास विज़िट करें. इसके अलावा जो वंस ये लॉकडाउन ओवर होगा तो हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अपनी फैमिली से शायद दूर बैठे होंगे और वो अपनी फैमिली को मिलना चाहेंगे, उनको कांटेक्ट करना चाहेंगे, उनके पास जाना चाहेंगे, या आपके नियर एंड डियर वंस को, किसी के पेरेंट्स हैं, किसी के बच्चे हैं जो कि दूर हैं, तो वो उनको मिलना चाहेंगे. तो प्लीज़ इस चीज़ की कोई जल्दबाजी ना करें ट्रैवल करने की, क्योंकि बसेस, ट्रेन्स, एयर ट्रैवल सब में चांसेस ऑफ इन्फेक्शन है. तो जितना हम इसको पेशेंटली लेके चलेंगे उतना बेहतर रहेगा, जितना कम हम ट्रैवल करेंगे उतना सही रहेगा. ट्राई टू डिक्रीज दिस इवन आफ्टर द लॉकडाउन इज़ ओवर. देन कम्स बहुत सारे लोग सेलिब्रेशंस नहीं कर पा रहे हैं आजकल. बर्थडेज, एनिवर्सरीज, मैरिजेस ये पॉसिबल नहीं हो पा रही हैं. अगर कर रहे हैं तो इसमें गैदरिंग्स नहीं हो पा रही हैं. तो इसमें भी हमें पुराने जो टाइम में हम कर रहे थे बड़ी बड़ी गैदरिंग्स और बहुत लेविश पार्टीज़, तो वो हम नहीं कर पाएंगे. वी विल हैव टू मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग देयर ऑल्सो. एंड वहाँ पर भी हमें कम से कम गैदरिंग रखनी है और कोशिश करनी है कि वी डोंट बिकम अ सोर्स ऑफ प्रॉब्लम फॉर द रेस्ट ऑफ द पीपल. सो with this I'll close off this topic of social factors with the final word: restrict your movement to the essentials. Now we come to the second topic of our discussion, which is the respiratory problems. अब जो सांस की बीमारियां हैं वो कई तरह की होती हैं. सांस की बीमारी कोरोना वायरस के कारण हमें ज़्यादा तकलीफ़ दे रही है. तो इस से रिलेटेड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिम्टम है वो है कफ. तो जो खांसी है, ओवरऑल मैंने ट्राई किया है कि मैं कम से कम मेडिकल लैंग्वेज में, इन दी कॉमन लैंग्वेज में आपको ये इन्फॉर्मेशन दे सकूं, ताकि आपके लिए ये बहुत हेल्प करे डिस्टिंग्विश करने के लिए कि आपको इस टाइम पे ट्रीटमेंट के लिए जाने की डॉक्टर के पास ज़रूरत है, इस समय पे नहीं ज़रूरत है, और ये चीज़ें के लिए पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है. तो वो आप थोड़ा सा डिस्टिंग्विश कर सकें, तो मैंने उस तरीके से थोड़ी सी कोशिश की है. I'll try to explain you a few things. तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो सांस की तकलीफ़ में खांसी है, जिससे हम सबसे ज़्यादा डर रहे हैं आज के टाइम पे.
किसी को भी अगर खांसी हो रही है तो वी आर थिंकिंग कि ये तो नोवल कोरोना है, बट प्लीज डोंट पैनिक। हर खांसी जो है विद और विदाउट फीवर इज नॉट नोवल कोरोना। जो खांसी बहुत तरह की है, लेकिन मैं आपके लिए जो मेजरली बता रही हूँ, जो जो आप लोग बहुत आराम से समझ सकें, उसमें एक तो गीली खांसी है जिसे हम वेट कफ कहते हैं, और दूसरी सूखी खांसी है जिसे हम ड्राई कफ कहते हैं। तो जो वेट कफ होती है उसमें फ्लेम या स्पूटम या बलगम आती है, और जो जो सूखी खांसी है उसमें फ्लेम बलगम या जो स्पूटम है वो नहीं आता है। तो इस तरीके से हम वेट और ड्राई को डिफ्रेंशिएट करते हैं। नाउ what kind of problems we have wet cough? We'll first discuss those diseases and then we go in for the dry cough. So wet cough कब कब होती है? सबसे कॉमन, हम सबको खांसी हो चुकी है, वी नो कि खांसी क्या होती है और कैसी होती है। तो सबसे कॉमन जो वेट कफ है वो होती है सीजनल फ्लू में, जिसे हम कॉमन कोल्ड बोलते हैं। आम जो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, आप भी रूटीन में कहते हैं कि जी हमें तो जुकाम हो गया। तो जुकाम हो गया मीन्स कि आपको रनिंग नोज है, वाटरी आईज हैं, और हो सकता है कि आपको उसके साथ फीवर हो सकता है ना हो। इसके अलावा खांसी हो सकती है, नहीं भी हो सकती। गले में आपको दर्द हो सकता है, नहीं भी हो सकता। लेकिन रनिंग नोज एंड वाटरी आईज इज मैंडेटरी, वो है ही है, आपको वो जुकाम हो गया आपको। नाउ दिस इन्फेक्शन इज ड्यू टू वायरस, एंड ये जो वायरल प्रॉब्लम होती है कॉमन कोल्ड की या कॉमन फ्लू की या सीजनल फ्लू की, ये नॉर्मली 5 to 7 days में सेल्फ रिजॉल्विंग होती है, अपने आप ठीक हो जाती है। इवन इफ यू डोंट टेक एनी मेडिकेशन, उसने ठीक हो जाना है। लेकिन एट टाइम्स क्या होता है कि स्टफीनेस ऑफ द नोज ज़्यादा हो जाती है, आपको सांस लेने में थोड़ी सी तकलीफ आने लग जाती है, और इतना ज़्यादा रनिंग नोज एंड वाटरी आइज हो जाती हैं कि आप काम नहीं कर पाते हैं, मैलेस ज़्यादा हो जाता है, आपको थकावट की फीलिंग आती है, सिर दर्द कई बार हो जाता है। तो अगर ऐसा हो तो आपने क्या करना है, आपने सादे पानी की भाप लेनी है। ये भाप 5 से 7 मिनट तक लेनी है। दिन में नॉर्मली 2 से 3 बार अगर आप सादे पानी की भाप लें 4 से 5 दिन तक, तो इससे ज़्यादा की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो अपने आप ठीक हो जाता है। अगर उसके बाद भी आपको सांस लेने में प्रॉब्लम आए तो आप सेलाइन नेजल ड्रॉप्स यूज़ कर सकते हैं, और आपका नोज क्लियर हो जाएगा, आपको सांस सही तरीके से आएगा, एंड योर कोल्ड विल बी फाइन। सो यू नीड नॉट पैनिक ऑन दैट। आपको उसके लिए डॉक्टर के पास भी जाने की ज़रूरत नहीं है। इन केस ये सब करने के बाद भी आपको रिलीफ नहीं आता है, देन डेफिनेटली यू नीड टू कंसल्ट योर फिजिशियन, और जैसे फिर आपके फिजिशियन आपको एडवाइस करेंगे, यू नीड टू फॉलो दोज एडवाइस। देन नेक्स्ट इज द एलर्जिक राइनाइटिस। अब ये एलर्जिक राइनाइटिस एक मेडिकल टर्म है, बट ये इटसेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। एलर्जिक इज द फर्स्ट वर्ड, दैट मीन्स कि जो प्रॉब्लम अराइज हुई है वो एलर्जी के कारण है। एंड राइनाइटिस मीन्स कि नाक से आंख से पानी आना। अब एलर्जी के कारण जब नाक और आंख से पानी आता है, या आपको बहुत सारी छींकें आती हैं, और उसके साथ हो सकता है आपको खांसी भी आए, दैट मीन्स यू हैव एलर्जिक राइनाइटिस। नॉर्मली लोगों को पता ही होता है कि हमें डस्ट से एलर्जी है, या हमें परफ्यूम से, डिओड्रेंट से, धूप से, जो पोलन्स का सीज़न होता है, स्प्रिंग सीज़न होता है,
फरवरी मार्च में लोग बोलते हैं कि जी हमें ये एलर्जिक प्रॉब्लम बहुत होती है, वीट हस्क का सीज़न होता है, उस टाइम पे ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो नॉर्मली हमें इसके एग्रेवेटिंग फैक्टर्स पता होते हैं। कुछ तो एग्रेवेटिंग फैक्टर्स को हम कंट्रोल कर पाते हैं, तो जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं हम उनको यूज़ ना करें। अगर आपको परफ्यूम से है या धूप से है तो आप वो चीज़ें ना यूज़ करें। लेकिन कुछ चीज़ें जो कि एटमॉस्फेयर में होती हैं, डस्ट में होती हैं, उनको हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करें? अगर आपने डस्टिंग करनी है या आपका जॉब ऐसा है कि आपको स्टोर्स में से फाइल निकालनी पड़ रही हैं, या आप लाइब्रेरी में काम कर रहे हैं जहाँ पे आपको ओल्ड बुक्स निकालनी पड़ रही हैं, ओल्ड रिकॉर्ड्स आपको यूज़ करने पड़ रहे हैं, तो वैसे जो डस्टी एटमॉस्फेयर में अगर आपको काम करना पड़ रहा है और आपको ये एलर्जी की प्रॉब्लम है, तो ट्राई टू कवर योर फेस विद द मास्क। जो अभी हम सब लोग मास्क यूज़ कर रहे हैं एंड वी आर क्वाइट फेमिलियर विद इट यूजेज, तो आई विल एडवाइस कि आप लोग मास्क यूज़ करें उस टाइम पे। अगर उसके बाद भी आपको तकलीफ हो रही है तो आप एंटी एलर्जिक सेट्राजिन वगैरह यूज़ कर सकते हैं। इन केस ये सब लेने के बाद भी आपको आराम नहीं आता है तो आप अपने फिजिशियन को कंसल्ट करें और वो फर्दर आपको मेडिसिन्स, एंटी एलर्जिक मेडिसिन्स या एज पर योर रिक्वायरमेंट वो आपको ट्रीटमेंट बता सकेंगे। द थर्ड इज द एलर्जिक ब्रोंकाइटिस। अब जो एलर्जिक राइनाइटिस था वो इन्वॉल्व कर रहा था हमारा नोज, और ये पोर्शन हमारी सांस लेने की जो नाड़ियां हैं उसका ये पोर्शन इन्वॉल्व कर रहा था। इतने पोर्शन में अगर एलर्जी हो तो एलर्जिक राइनाइटिस होती है। लेकिन जब हमारी एलर्जी अंदर चली जाती है ब्रोंक्यूल्स में, जो कि हमारी सांस लेने की नालियां हैं, वंस उन नालियों में हमारे एलर्जी चली जाती है, एलर्जन अगर यहाँ इफेक्ट चला जाता है, तो हमें जो प्रॉब्लम होती है उसका नाम है एलर्जिक ब्रोंकाइटिस। ब्रोंक्यूल्स उस नालियों का जो हमारी लंग्स की ट्यूब्स हैं उनका नाम है। तो उसमें एलर्जी के कारण इन्फ्लेमेशन हो जाती है, सोजिश आ जाती है। जो रूटीन में जो ब्रोंक्यूल्स की गर्थ है अगर वो इतनी होती है और इससे हमें सांस आ रहा होता है इतनी गर्थ से, तो जब एलर्जिक ब्रोंकाइटिस होती है तो इसकी जो ट्यूब है, इसका जो ल्यूमेन है वो छोटा हो जाता है और जो सांस लेने में हमें तकलीफ होती है, क्योंकि एयर एंट्री जो है उसकी स्पेस कम हो गई है, एयर एंट्री कम हो रही है उसमें। वंस एयर एंट्री इज अफेक्टेड तो हमें ब्रेथलेसनेस होगी, इरिटेशन थ्रोट में होएगी, खांसी होएगी, क्योंकि बॉडी अपने आप उसको खोलने की कोशिश कर रही है। सांस लेने की तकलीफ कई बार ज़्यादा भी हो सकती है, तो हमें उस समय पे स्टीम इन्हेलेशन लेनी है। और अगर फिर भी हमें ना फ़र्क पड़े तो हमें एंटी एलर्जिक्स लेने पड़ते हैं। और एंटी एलर्जिक्स एंड स्टीम से तकरीबन 60 से 70% लोगों में आराम आ जाता है। अगर उसके बावजूद भी ना फ़र्क पड़े तो आप अपने फिजिशियन को कंसल्ट कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप मेडिकेशन यूज़ कर सकते हैं। द फोर्थ वन इज़ द ब्रोंकियल एस्थमा। एस्थमा तकरीबन हमने सबने सुना हुआ है कि एस्थमा में सांस लेने में तकलीफ़ होती है और हवा जो एयर एंट्री है, जो हवा हमारे फेफड़ों में जा रही है वो प्रॉपरली नहीं पहुंच रही होती है फेफड़ों में, जिसके कारण हमारे फेफड़ों से आवाज़ आने शुरू हो जाती है। वो स्ट्रेन्ड ब्रीदिंग होती है और साथ में
एक अलग सी आवाज़ आती है, जो कि आपके डॉक्टर जब आपको आप स्टेथो से सुनते हैं तो उनको पता लगता है कि हाँ, इनके फेफड़ों में सही अमाउंट ऑफ एयर नहीं पहुंच पा रही है, जिसके कारण इनको सांस लेने की तकलीफ हो रही है। जब अस्थमा होता है तो आप लेट नहीं पाते हैं, अगर आप लेटते हैं तो आपको सांस की प्रॉब्लम आती है, आपको उठ के बैठना पड़ता है। तो उस केस में क्या करें? मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स को पता होता है कि उनको अस्थमा की प्रॉब्लम है। आई विल नॉट गो इनटू डिटेल्ड कॉजेज ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा, उसके बहुत सारे कारण हैं अस्थमा के। विल गो ओनली टू द सिम्टम्स एंड द प्रिवेंशन। तो सिम्टम्स अभी हमने किए, एंड प्रिवेंशन में हमने क्या करना है कि मेडिसिन्स जो हैं तकरीबन लोगों को पता होती हैं, जो जिनको अस्थमा होता है तो उनके पास नॉर्मली इन्हेलर्स होते हैं। इन्हेलर्स क्या होते हैं? वो ब्रोंको डायलेटर्स होते हैं। ये जो ब्रोंको डायलेटर्स होते हैं, ये हमारे जो ये ब्रोंकियोस, अभी हमने जैसे पिछले वाली उसमें पढ़ा एलर्जिक ब्रोंकाइटिस, ये ब्रोंकियोस वही वाले हैं जो हमारा जो एयर एंट्री हमारे लंग्स तक लेके जा रहे हैं। अब जब ये हवा सही तरीके से हमारे फेफड़ों तक नहीं पहुंचती है तो हमें सांस में तकलीफ होती है, और उसे हम अस्थमा या दमे की बीमारी कहते हैं। तो इस जो ये ब्रोंकियोल्स हैं उसको डायलेट करने के लिए हमें इन्हेलर्स यूज़ करने पड़ते हैं, पंप्स यूज़ करने पड़ते हैं, जिसे हम कॉमन लैंग्वेज में पंप्स बोलते हैं। तो वो इन्हेलर्स जब हम यूज़ करते हैं तो वो ब्रोंकियोल्स खुल जाते हैं और प्रॉपरली एयर लंग्स तक पहुंच जाती है। तो आपको जो सांस लेने में स्ट्रेन हो रहा था, जो प्रॉब्लम हो रही थी, जो सही से सांस नहीं आ रहा था, आपको स्ट्रेन्ड ब्रीदिंग लग रही थी, वो सारा कुछ आपका बेहतर होने लग जाता है। बहुत सारे लोगों में सिर्फ इन्हेलर से आराम नहीं आता, तो उन्हें साथ में टैबलेट्स की रिक्वायरमेंट भी होती है। जो लोग इन्हेलर्स यूज़ कर रहे हैं, इन केस उनकी एग्रेवेशन हो रही है इन दिनों में अस्थमा की, तो वो अपने इन्हेलर के यूजेज को एक्सटेंड कर सकते हैं। वो अगर वो दिन में 1 बार या 2 बार यूज़ कर रहे हैं तो उसे 3 से 4 बार कर लें, और अगर वो टैबलेट्स नहीं यूज़ कर रहे हैं तो उसे लेना शुरू कर दें। इन केस वो टैबलेट्स ले रहे हैं, दिन में अगर 1 बार ले रहे हैं तो उसे भी हम एक्सटेंड करके दिन में 2 बार, कुछ मेडिसिन हम दिन में 2 बार ले सकते हैं। अ फ्यू काइंड्स कैन ऑल्सो बी यूज्ड 3 टाइम्स, बट अगर आपने 2 बार से ज़्यादा यूज़ करनी है तो इट इज़ प्रेफरेबल टू कंसल्ट योर फिजिशियन एंड देन यूज़ इट। तो अगर ये सारा कुछ करने के बावजूद भी आपका अस्थमा बेटर नहीं हो रहा है तो आप अपने फिजिशियन को कंसल्ट करें, या अगर आपको सांस लेने की प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है, बिल्कुल भी सांस नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ विजिट योर नियरेस्ट हॉस्पिटल और अ हेल्थ सेंटर, ताकि आपका इलाज सही से हो सके। Now, the 5th is the influenza A या H1N1 या स्वाइन फ्लू, जो हम पिछले तकरीबन 10-12 साल से देख रहे हैं। 2009 में स्वाइन फ्लू बहुत ज़्यादा हुआ था, उसे अब हम स्वाइन फ्लू नहीं कहते हैं, दो इन कॉमन लैंग्वेज इट इज़ स्टिल कॉल्ड एज स्वाइन फ्लू। हम मेडिकल टर्म्स में उसको इन्फ्लुएंजा ए कहते हैं। तो ये जो है, ये भी जब हुआ था तो इसका काफ़ी स्केयर हुआ था, दो इट वाज नॉट एज प्रिविलेंट एज द नोवल कोरोना, लेकिन ये भी सांस की बीमारी थी और बहुत जल्दी फैली थी, और खांसी इसमें भी बहुत हो रही थी, बुखार था, तो कुछ चीज़ें इसकी भी सिमिलर थी। तो जो इन्फ्लुएंजा ए है उसमें क्या क्या सिम्टम्स होते हैं? एक तो बुखार बहुत तेज़ होता है। तेज़ बुखार मीन्स जब 101 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर बुखार हो तो हम उसे हाई फीवर में कंसिडर करते हैं।
तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स इन्फ्लुएंजा के होते हैं वो होते हैं हाई फीवर, रनिंग नोज, हेडेक, कफ एंड एग्जॉशन। ये मोस्ट प्रोमिनेंट सिम्टम्स होते हैं। इसके अलावा बॉडी एक्स हो सकते हैं, आपको नोजिया मतलब आपको उल्टी की फीलिंग हो सकती है, उल्टी आ सकती है, लूज मोशंस हो सकते हैं। जो अगर ऐसे कोई सिम्टम्स आपको होते हैं तो इसका इलाज घर पे नहीं किया जा सकता। नॉर्मली इसका सीज़न इन दिनों में नहीं होता, इसका सीज़न नॉर्मली सितंबर टू फेब होता है। लेकिन फिर भी कुछ केसेस ऑन एंड ऑफ देखने को मिलते हैं थ्रू आउट द ईयर। तो हम ऑल टुगेदर नहीं कह सकते कि ये बिल्कुल भी नहीं होता, लेकिन इसकी जो बढ़ने की टेंडेंसी है वो उन महीनों में ज़्यादा होती है रादर देन इन दीज मंथ्स। तो अगर ऐसी कोई तकलीफ आपको होती है तो वो उसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा और आपको फिजिशियन को कंसल्ट करना पड़ेगा। वो रिक्वायर्ड इन्वेस्टिगेशंस करेंगे और उसके बाद ही उसका ट्रीटमेंट हो सकेगा। इन्फ्लुएंजा जो है वो नोटिफाइबल डिजीज़ है, तो वो आगे हमें हेल्थ अथॉरिटीज़ को भी इन्फॉर्म करनी होती है। तो ये इस बीमारी से के अगर आप में सिम्टम्स हैं तो आपको हॉस्पिटल ज़रूर जाना चाहिए और अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। नेक्स्ट इज़ जो इन्फ्लुएंज़ा है वो वायरस की इन्फेक्शन से है। जैसे नोवल कोरोना है वो भी वायरस है, ऐसे ही इन्फ्लुएंज़ा भी वायरस है। ये काफ़ी कुछ मिलता जुलता है निमोनिया के साथ। निमोनिया नॉर्मली बैक्टीरिया से होता है, तो निमोनिया में क्या होता है, निमोनिया में भी हाई फीवर होगा सिमिलरली जैसे हमने इन्फ्लुएंजा में देखा, लेकिन उसके साथ इसमें कपकपी होएगी, बहुत आपके शरीर में कपकपाहट होगी, आपको ठंड लगेगी, खांसी होगी, सांस लेने में तकलीफ होएगी। जो आपकी रूटीन में जो सांस है, जो हमारी नॉर्मल ब्रीदिंग है, दैट इज़ बिटवीन 16 to 20 ब्रेथ्स पर मिनट, ये हमारी यूजुअली नॉर्मल रेंज होती है ब्रीदिंग की। लेकिन जब आपको निमोनिया हो जाता है तो ये जो आपकी सांस लेने की जो प्रक्रिया है, ये जो नंबर ऑफ ब्रेथ्स पर मिनट हैं वो आपकी इंक्रीज हो जाती हैं। दे मे रीच अप टू 40 और इवन एट टाइम्स इट मे बी मोर देन 40। तो जो ब्रीदिंग होएगी वो स्ट्रेनस होएगी, बहुत जल्दी जल्दी से आप सांस लेंगे क्योंकि फेफड़ों में सही तरीके से हवा जा नहीं रही है, एयर एंट्री में प्रॉब्लम आ रही है। तो बॉडी कोशिश करती है कि वो जल्दी जल्दी से सांस लेके और एडिक्वेट ऑक्सीजनेशन बॉडी सेल्स को पहुंचा सके। इसके कारण से बहुत ज़्यादा सांस लेने में प्रॉब्लम आती है हमें। Then one important disease which I will like to share with you here also is the pulmonary tuberculosis. अब ये pulmonary tuberculosis जो है ये मेडिकल टर्मिनोलॉजी है फेफड़ों की टीबी की। जब हमें छाती की या फेफड़ों की टीबी हो जाती है तो उसे हम पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं। इसमें भी खांसी बहुत इम्पॉर्टेंट, जो वेट कफ होती है, बलगम वाली खांसी, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिम्टम होता है। अब ये जो पल्मोनरी टीबी है वो कैसे डिफ्रेंशिएट होती है दूसरों से, उसमें ये है कि इसमें खांसी का जो ड्यूरेशन है वो 2 हफ्ते से ज़्यादा होता है, लंबी देर की खांसी होती है, फीवर माइल्ड होता है और इंसान को थकावट बहुत ज़्यादा होएगी, उसे भूख नहीं लगेगी, उसका वज़न कम होगा, उसको रात को पसीने आ सकते हैं। अगर आपको या आपके घर में आपके किसी नोन को ऐसी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कंसल्ट योर फिजिशियन। उनको आप फिजिशियन के पास जाना पड़ेगा। इसका इलाज घर पे नहीं हो सकता है, उसके लिए बलगम की जांच करनी पड़ेगी, डायग्नोसिस इस्टेब्लिश करना पड़ेगा, तब जाके उसका ट्रीटमेंट शुरू किया जा सकता है। नाउ विद दिस
the important diseases with wet cough, जिसमें बलगम वाली खांसी होती है, जिनको हम डिस्टिंग्विश कर सकें, वो ऑलमोस्ट हमने कवर कर ली हैं. नाउ वी गो टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ द ड्राई कफ. अब जिस भी खांसी में बलगम नहीं होती है उसे हम ड्राई कफ कहते हैं, जैसे हमने पहले भी इसको डिस्कस किया था. तो क्या कंडीशंस हैं जिनमें ड्राई कफ हो? जो ड्राई कफ है वो नॉर्मली क्या करती है, ड्यू टू द इरिटेशन इन द थ्रोट. इस एरिया में जब हमें इरिटेशन होती है और ये एरिया में जब हमारे सोजिश आ जाती है, तो ये सिर्फ ऊपर के एरिया इसमें अफेक्टेड होते हैं, तब हमें सूखी खांसी होती है. नॉर्मली जब हमें जो लंग्स की प्रॉब्लम होती है, ब्रोंकियोल्स की प्रॉब्लम होती है, उसमें ड्राई कफ नहीं आती है. सो अगर ड्राई कफ है, दैट मीन्स द रेस्ट ऑफ आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम इज फाइन, द प्रॉब्लम लाइज समवेयर हियर. तो ये जो ड्राई कफ है, इसके कारण क्या क्या होते हैं? तो मोस्ट कॉमन कारण जो है वो एलर्जीज हैं. ऑलमोस्ट ऑल काइंड्स ऑफ एलर्जीज दे लीड टू ड्राई कफ. वो एलर्जी डस्ट से हो सकती है, पोल्यूशन, स्मोक, किसी इंसेक्ट की बाइट के कारण हो सकती है. एट टाइम्स हम देखते हैं कि येलो वैस्प या हनी बी बाइट्स हुई हैं, और मल्टीपल बाइट्स फेस पे, नेक पे, शोल्डर एरिया में हुई हैं. बहुत लोग जब टू व्हीलर पे ट्रैवल कर रहे होते हैं और उन्होंने हेलमेट डाली होती है, तो हेलमेट के अंदर कई बार मक्खियाँ घुस जाती हैं और वो फेस पे, आपके नेक पे एंड बैक साइड, अपर बैक एंड शोल्डर, ये सब पे मल्टीपल बाइट्स करती हैं. तो अगर ऐसी प्रॉब्लम होती है तो उसमें कफ होता है, और वो ऐसी सिचुएशन जो होती है वो इमरजेंसी सिचुएशन होती है. इमीडिएटली यू हैव टू रश टू हॉस्पिटल एंड यू नीड टू गेट इंजेक्टेबल्स एंड ट्रीटेड स्टैट देयर, क्योंकि इसमें एकदम से हमारे सांस लेने की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाती है. यहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है नेक में, जिसके कारण सांस आने में तकलीफ हो जाती है. इसके अलावा कई तरह की और एलर्जीज होती हैं जिससे खांसी हो सकती है. एसिडिटी, जो हम कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं, या मेडिकल टर्म्स में हम उसे GERD, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज कहते हैं, उसमें भी ड्राई कफ होता है. तो अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, अगर आपको एसिडिटी है तो आप एंटासिड्स लेंगे तो आपकी कफ ठीक हो जाएगी. आप जो मसाले वाली भारी चीज़ें हैं, तेल वाली, मीठे वाली, ये कम खाएं. रात को लेट डिनर ना करें. समय से खाना खाएं. खाना खाने के बाद सैर करें. इमीडिएटली खाना खा के लेटे नहीं, सोए नहीं. तो थोड़ी थोड़ी ऐसी अगर हम प्रिकॉशंस रखेंगे तो भी ड्राई कफ के चांसेस कम होंगे, एसिडिटी आपकी कम होएगी, और बहुत सारी आपको तकलीफ़ें नहीं होंगी. Then there are certain medicines which can lead to dry cough. कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जो आपको हो सकता है आप रूटीन में यूज़ कर रहे हो, या आपको नई कोई आपको प्रिस्क्राइब की गई हो, जिसे लेने के बाद आपको खांसी हो रही हो. इन केस किसी मेडिसिन के कारण आपको ड्राई कफ हो रही है तो आपको अपने फिजिशियन को बताना पड़ेगा, और फिजिशियन ही फाइंड आउट कर सकेंगे कि ये कौन सी पर्टिकुलर मेडिसिन के कारण आपको ड्राई कफ हो रही है. तो वो उसको स्टॉप करेंगे, एंड विद इन अ फ्यू डेज यू विल बी फाइन. यू नीड नॉट टेक एनी अदर मेडिसिन फॉर दैट. तो ये सिर्फ इतने में ही सही हो सकती है. देन जैसे मैंने आपको बताया कि इस पोर्शन में जो प्रॉब्लम्स होती हैं दे लीड टू ड्राई कफ, तो इसमें हमारे सर्टन ऑर्गन्स आर देयर, जिसे हम मेडिकल लैंग्वेजेस में लैरिंग्स, फेरिंग्स, टॉन्सिल्स, थ्रोट बोलते हैं. तो
ये जो पोर्शंस हैं, अगर इनमें किसी भी तरीके की इन्फ्लेमेशन हो जाए, तो अगर लैरिंग्स में हो तो लैरिंजाइटिस हो जाती है, फेरिंग्स में हो तो फेरिंजाइटिस हो जाती है, टॉन्सिल्स में हो तो टॉन्सिलाइटिस हो जाती है, सोर थ्रोट हो सकता है. दीज कैन ऑल्सो लीड टू ड्राई कफ. अपार्ट फ्रॉम दिस, हम जो एस्थमा हमने पढ़ा था, एस्थमा में वहाँ हमने पढ़ा था कि वेट कफ होती है, एस्थमा में ड्राई कफ भी होती है. बहुत सारे लोग जो क्रॉनिक अस्थमेटिक होते हैं तो उन्हें यूजुअली ओल्ड एज में ड्राई कफ शुरू हो जाती है, उस टाइम पे वेट कफ नहीं होती है. देन स्मोकर्स कफ भी बहुत कॉमन है, वो भी ड्राई कफ होती है. और ये जो क्रॉनिक अस्थमेटिक एंड स्मोकर्स कफ है, इसे हम मेडिकल लैंग्वेज में क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज बोलते हैं या COPD. तो इसमें जो एयर एंट्री है वो कम हो जाती है और उसके कारण हमें सांस लेने में प्रॉब्लम आती है और बॉडी का अपना डिफेंस मैकेनिज्म काम करता है और लंग्स को वो फैलाने के लिए बॉडी कफ करना शुरू कर देती है. तो इसके इलाज के लिए फॉर द क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज आपको अपने फिजिशियन को कंसल्ट करना पड़ेगा, अपने चेस्ट स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करना पड़ेगा. और ये जो है बीमारियां, इसका 100% इलाज तो नहीं हो सकेगा, लेकिन डेफिनेटली कुछ बेहतरी जरूर हो जाएगी वंस यू स्टार्ट द मेडिकेशन. तो उसके लिए आपको उन्हें कंसल्ट करना ही होगा. नाउ with this we complete the kinds of cough and how to differentiate between the coughs. Important topic now we'll discuss is when to visit a fever clinic. अब हम सारे इस वक्त डरे हुए हैं और उस डर में हमें ये नहीं समझ में आ रहा कि क्या तकलीफ हो जब हमें फीवर क्लिनिक जाना है. और अगर हमें फीवर क्लिनिक जाना है तो वहाँ पे हम किसको कंसल्ट करेंगे, क्या होगा. तो यू नीड नॉट वरी, फीवर क्लिनिक्स सही तरीके से बनाए गए हैं. कुछ गवर्नमेंट हॉस्पिटल सेक्टर 16 में, सेक्टर मनी माजरा में, सेक्टर 45 में, सेक्टर 32 में, PGI में डिजिग्नेटेड फीवर क्लिनिक्स बनाए गए हैं. जिनको ऐसी प्रॉब्लम आ रही है वो क्लिनिक्स को विजिट कर सकते हैं. क्या प्रॉब्लम्स हैं, नाउ आई विल इलैबोरेट ऑन दैट. अगर आपको बुखार है, बुखार के साथ आपको बहुत ज़्यादा थकावट हो रही है, आपसे उठा नहीं जा रहा, आपको सांस लेने में तकलीफ आ रही है, देन यू आर ए कैंडिडेट टू विजिट द फीवर क्लिनिक. आपको बहुत ज़्यादा नेजल कंजेशन है, रनिंग नोज, सोर थ्रोट और बहुत कपकपाहट हो रही है, बॉडी एक्स, प्रोफाउंड बॉडी एक्स हो रहे हैं, बिल्कुल भी उठना मुश्किल हो रहा है, आपके भूख नहीं लग रही है, आपको वॉमिटिंग की सेंसेशन हो रही है, आपको लूज मोशन हो रहा है, तो आप फीवर क्लिनिक जरूर विजिट करें. इसके अलावा अगर आपको सिर्फ टेस्ट ऑफ द लैक ऑफ टेस्ट एंड स्मेल चली गई है, मतलब आप सूंघने की शक्ति और चखने की शक्ति ये दोनों आपकी खत्म हो गई हैं, देन ऑल्सो यू आर ए कैंडिडेट टू विजिट फीवर क्लिनिक. जो अब नए सिम्टम्स आ रहे हैं उसमें जो ये टिप्स ऑफ फिंगर्स हैं ये ब्लू हो रही हैं, हैंड की या फीट की किसी भी जगह की हो सकती हैं. अगर ये नीली पड़ रही हैं आपकी टिप्स ऑफ फिंगर्स या टोज, तो आपको फीवर क्लिनिक विजिट करना है. चेस्ट पे अगर आपको प्रेशर पड़ रहा है, चेस्ट पेन हो रही है, दैट इज ऑल्सो अ सिम्टम टू विजिट द फीवर क्लिनिक. ब्लू लिप्स या फेस आपका ब्लू हो रहा है, देन ऑल्सो यू आर ए कैंडिडेट टू विजिट द फीवर क्लिनिक.
इफ़ यू हैव कंफ्यूजन, कंफ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड है, अवेकनिंग नहीं हो पा रही है फुल्ली, तो भी आपको फीवर क्लिनिक विज़िट करना चाहिए। तो ये कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जिनमें आपको फीवर क्लिनिक विज़िट करने की रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा कुछ जनरल चीज़ें मैं कहूँगी आपसे कि आप अगर रूटीन में कुछ मेडिसिन्स ले रहे हैं, बहुत सारे लोग क्रॉनिक पेशेंट्स हैं और उनकी दवाइयाँ चल रही हैं लगातार, तो वो अपनी रेगुलर मेडिसिन्स ना बंद करें, उसे कंटिन्यू करें। कोविड और नो कोविड, you still have to continue with your regular medicines, whether you are able to visit your physician or you are not able to visit your physician. Still continue taking your medicines as have been prescribed by you, जैसे कि आपकी बीपी की हैं, हार्ट की हैं, शुगर की हैं, थायराइड की मेडिसिन्स हैं, इन सब को आप कंटिन्यू रखें, आप इन्हें बंद ना करें। बहुत सारे लोगों की मेडिसिन्स जो हैं वो कम होने लगी हैं बिकॉज़ तकरीबन हम कुछ दिनों से ऑलमोस्ट 40 डेज से हम घर पे बैठे हैं, तो हमारी जो ऑफिस के स्ट्रेसेस हैं वो कम हैं, जो जो घर में हमारा माहौल है वो सही है, टेंशन्स नहीं है, बाहर जाने आने का खर्चा जो है वो कम है, जिनके पास रिसोर्सेज हैं उनके लिए खर्चा कम हो गया है। तो उस कंडीशंस में बहुत सारे लोगों की जो बीपी की और शुगर की मेडिसिन्स हैं वो कम हो रही हैं। इन केस आपको वो लग रहा है कि आपका बीपी जो है वो कम हो रहा है और कम मेडिसिन से भी कंट्रोल हो सकता है, तो अपने फिजिशियन को कंसल्ट करें और उनकी सलाह से मेडिसिन को कम कर सकते हैं आप। इसी तरीके से शुगर की मेडिसिन्स भी कई पेशेंट्स की कम हो रही हैं, तो वो भी जिनके पास ग्लूकोमीटर्स हैं वो उसको घर पे सही तरीके से मैनेज करके उसे कम कर सकते हैं। जो रूटीन की इन्वेस्टिगेशंस हैं, प्लीज़ डोंट go in for those. I suggest you to avoid routine investigations. जो रूटीन इन्वेस्टिगेशंस हैं उसकी इस समय पे कोई ज़रूरत नहीं है, उसकी कोई बहुत रिक्वायरमेंट नहीं है हमें, सो दैट कैन बी अवॉइडेड। अगर आपको कोई इमरजेंसी होती है तो प्लीज़ डोंट शाई अवे फ्रॉम विजिटिंग द हॉस्पिटल्स, क्योंकि हॉस्पिटल्स बहुत अच्छे से इक्विप किए गए हैं, प्रॉपर कोविड जोन्स बना दी गई हैं ताकि जो रूटीन के पेशेंट्स हैं उनको इन्फेक्शन ना जाए, जो हेल्थ स्टाफ है वो भी कम से कम कोविड पेशेंट्स के कांटेक्ट में आए, इसकी भी कोशिश पूरी की गई है, सारी अरेंजमेंट्स की गई हैं इस तरीके से। तो अगर आपको कोई नॉन कोविड इमरजेंसी होती है तो आप हॉस्पिटल ज़रूर विज़िट करें, अपने फिजिशियन को ज़रूर विज़िट करें। आप ये ना सोचें कि वहाँ अगर हम चले गए तो वहाँ से तो हम नोवल कोरोना लेके ही आएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। डोंट स्केयर ऑफ फ्रॉम दैट। अपना इलाज सही से कराएं, सही समय पे अपनी मेडिसिन लें। हम एज डॉक्टर्स वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट कि हम आपकी मैक्सिमम केयर कर सकें, एंड आई विल थैंक यू ऑल टू हेल्प अस टू कंटिन्यू, and I'll also thank you all to continue helping, to continue to help you all, and because अगर आप लोग घर पे ना बैठते आराम से, आप लोग सही तरीके से जो आप लोगों को कही गई थी बातें उनको नहीं फॉलो करते, तो हम आपकी हेल्प ना कर पाते। तो आपने ये सारी चीज़ें सही से फॉलो की हैं, उसके लिए आपका थैंक्स। विद दिस आई लाइक टू एंड द सेशन। कीप होप्स अलाइव,
keep your attitudes positive, stay home, stay calm, eat healthy, stay safe, stay healthy. Jai Hind. If any queries are there, I'll like to address them. Thank you all. Thank you for attending the session. Thank you all. I have a question. What all kinds of precautions should be taken by elders and kids? The precautions are the same for the elders and the kids. It is just that the immunocompromised people, जो जैसे कि हमें पहले भी बताया गया है गवर्नमेंट ने, एंड जो हमारी CDC की गाइडलाइंस हैं उसमें उन्होंने कहा है कि जो एल्डरली हैं, मींस जो लोग 65 एंड अबव हैं और उनको कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड प्रॉब्लम्स हैं, अगर वो डायबिटिक हैं तो वो इन्फेक्शन के लिए ज़्यादा प्रोन होते हैं, तो उन्हें हम कम से कम एक्सपोज करें आउटसाइड एटमॉस्फेयर को, so that their chances of getting the infection are less. बट अदरवाइज जो इन्फेक्शन के चांसेस हैं वो ऑलमोस्ट ऑल एज ग्रुप्स में सेम हैं. 85% ऑफ द पीपल जो हैं कोरोना वायरस से अफेक्टेड वो ट्रीट हो जाते हैं, वो सही हो जाते हैं, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है. इट इज़ जस्ट दी जो 10% हैं उनको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत होती है, एंड 5% जो हैं वो ICUs में एडमिट हो रहे हैं एज पर द डाटा, एंड अमंग दोज 5% इट इज़ जस्ट 3% ऑफ देम जो probably may be disastrous. They may lead to death. तो वो कंडीशन जो है वो बहुत कम लोगों में है. इंडिया अभी तक तो बचा हुआ है, बहुत कम केसेस हमारे हुए हैं. तो टिल द टाइम द बर्डन ऑफ डिजीज इज लेस, बट वी स्टिल नीड टू टेक द प्रिकॉशंस. रूटीन प्रिकॉशंस हमने कंटिन्यू रखनी है. बच्चों के लिए भी सेम है जो हम एडल्ट्स के लिए हैं, कि हमें अपना हाइजीन मेंटेन करना है, हैंड वॉशिंग फ्रीक्वेंटली करनी है, मास्क लगाना है अगर बाहर जाना है. तो आजकल स्कूल्स बंद हैं तो किड्स को हम कोशिश करें कि वो घर पे ही रहें, घर पे ही खेलें, उनको हम एंगेज्ड रखें घर पे किसी ना किसी काम में, कोई ना कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में, ताकि उनका मन लगा रहे और वो कुछ नई चीज़ें सीखते जाएं और उन्हें बोरियत भी ना लगे. सो दिस इज़ ओनली. सेकेंड इज़ वैक्सीनेशन फॉर कोरोना. अभी तक वैक्सीनेशन कोरोना की नहीं आई है. डेफिनेटली द ट्रायल्स आर ऑन, बट वैक्सीनेशन अभी तक आई नहीं है. इट विल टेक सम टाइम फॉर दीज थिंग्स टू कम अप. Then when to cover body for sweat and when not during fever. When to cover the body for sweat. I think you mean कि किस बुखार जब होता है तो हमें क्या करना चाहिए. अगर बुखार होता है, आप बुखार के बाद आपको पसीना आता है, तो वो जो पसीने वाली स्टेज है वो तब होती है व्हेन टू टेक क्विल्ट तो तब लेना है आपने अगर आपको ठंड लग रही है, तब आप डिफ़ॉल्ट से ही क्विल्ट लोगे.
अगर आपको ठंड नहीं लग रही है बुखार में तो आप क्विल्ट नहीं लोगे, लेकिन फीवर जो है उसमें रूटीनली फीवर में हमारा बॉडी टेम्परेचर हाई हो जाता है। नॉर्मल हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है वो 98.6 होता है, और जब वो हमारा बॉडी टेम्परेचर रूटीन से बढ़ता है तब हमें फीवर होता है। वंस फीवर इज देयर, तो जब जब फीवर होता है, इन्फेक्टिव स्टेट होती है, तो हमें कई काइंड्स ऑफ फीवर्स में हमें कपकपी होती है, शिवरिंग होएगी, चिल होएगी, ठंड लगेगी, और हम उस समय पे क्विल्ट लेंगे, अपने आप को कवर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उस समय हमें कवर नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम उसे कवर करते हैं तो क्या होता है कि फीवर और बढ़ जाता है, बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। तो हमें क्विल्ट नहीं लेना चाहिए। हम कोल्ड बाथ ले सकते हैं या कोल्ड स्पॉन्जिंग कर सकते हैं। समर्स में कोल्ड बाथ, कोल्ड स्पॉन्जिंग की जा सकती है, आप नहा सकते हैं। अगर बच्चे हैं तो उनको भी आप टब में बिठा सकते हैं, नहला सकते हैं। अगर ठंड का मौसम है तो आपने सिर्फ अपने जो कपड़े डाले हुए हैं, जैकेट्स, स्वेटर्स, वो आप हटा देंगे तो बॉडी टेम्परेचर जो है वो डाउन हो जाएगा। तो आपको उसके लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। स्वेटिंग फीवर में उस समय होती है जब बुखार नीचे आ रहा होता है। स्वेटिंग अदरवाइज नहीं होती है बुखार में। जब आपका फीवर डाउन आने लगता है तब आपको स्वेटिंग होती है। It would be great if you could explain or share some information about the postures that can help increase lung capacity. सर, जो ये lung capacity है उसको बढ़ाने के लिए there are certain exercises which can be done, breathing exercises, pranayams and all. तो वो अगर हम करते हैं, या अगर आप सीधे बैठ के लंबे सांस लेते हैं, जो जो एक साइड नॉस्ट्रल से आपने इन लिया और दूसरी साइड से निकाला, इस तरीके की ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हैं। आप एक हाथ छाती पे रखेंगे, दूसरा हाथ पेट पे रखेंगे, और फिर आप लंबी सांस लेंगे और छोड़ेंगे, उससे भी लंग कैपेसिटी इंक्रीज होती है। इसके अलावा अगर आप उल्टे लेटते हैं, मतलब कि आपका ये जो पोर्शन है वो बेड को टच कर रहा है और जो बैक है वो आपकी ऊपर जब होती है, और उस स्टेट में जब आप बेड पे लेटते हैं और सांस लेते हैं तो जो लंग्स हैं वो एक्सपैंड होती हैं। सो इस तरीके की अगर आप एक्सरसाइजेस करेंगे, रेस्पिरेटरी एक्सरसाइजेस, तो उससे आप अपनी लंग कैपेसिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, आप रूटीन की जो एक्सरसाइजेस हैं, योगाज हैं, वो आप करके अपनी लंग कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। रूटीन सैर है, जॉगिंग है, they also help in increasing your lung capacity. So I think there are no more questions now. Still, if any of you have any questions, I'll be glad to answer you all. You can send your messages, and I'll try to respond to your queries, your messages and your questions. Thank you, sir. Thank you very much. And I'll especially like to thank Arun Bansal sir to give me this opportunity to interact with all of you and to share my knowledge and to help the community in this state of emergency. Thank you all. Stay safe, stay healthy, keep your hopes alive and your attitude positive. Jai Hind once again. Bye. Good evening.